یہ نظر ثانی درخواستیں خارج ہوں یا نہ ہوں، تاثر یہ ہے کہ کیس زندہ ہو گیا ہے۔ آج جناب چیف جسٹس نے ان تمام فریقین سے جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں واپس لینے کی بات کی، ان سے بڑے اہم سوال کیے، بڑے اہم استفسار کیے، اور اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ جو فیصلہ تھا ہم اس پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ اگر یہ یقین دہانی درست ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ کیا تھا، اپیلوں میں کیا کہا گیا، اور اب جب عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا سر؟ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا، جی شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور جی اور ہماری تحریک لبیک والے دھرنا دے کے بیٹھ گئے، جی جی بالکل کم و بیش 20 دن تک، بالکل نہ کسی کو اندر آنے دیا اسلام آباد کے، نہ جانے دیا۔ بالکل۔ اور پھر کیسے وہ دھرنا ختم ہوا، کیسے اس میں جناب ہمارے اعلیٰ عہدیداروں نے مداخلت کی، کیا کیا حرکتیں کی، تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ اور کیا جسٹس مشیر عالم ان کا 2 رکنی بینچ تھا، وہ اس پہ فیصلہ دے چکا اور اس کے لیے کارروائی کی ہدایت کر چکا، لیکن اس پر نظر ثانی کی درخواستیں سب نے دائر ڈالی کی گئیں، الیکشن کمیشن، پیمرا پی نے، ٹی آئی، الیکشن پیمرا، کمیشن نے، 7-8 فریق تھے، حکومت نے، شیخ رشید صاحب نے، جی۔ پی ٹی آئی نے، ایم کیو ایم نے، صرف تحریک لبیک نے نہیں ڈالی، جس پر الزام بنیادی طور پر آج داد بھی دی جناب چیف جسٹس نے، انہیں کہا کہ انہوں نے چلیے اب یہ ہوا۔ اب ہمارے جو سابق چیف جسٹس صاحبان تھے 2-3، گلزار صاحب بھی اور ہمارے بندیال صاحب بھی، وہ اس نظر ثانی کے اوپر بیٹھ گئے۔ جی وہ نہیں لگانی، نظر ثانی کی درخواست وہی جج سنتا ہے جس نے فیصلہ دیا جس نے فیصلہ دیا ہو، اور اس تک لگنے نہیں دی گئی۔ اب وہاں تو تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مشیر عالم صاحب، اور اس لیے وہ اس پہ بیٹھ گئے، بیٹھے رہے۔ آج جناب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے نظر ثانی درخواستیں دائر کیں، کچھ غلطیاں تھیں جن کا آپ ذکر کرتے تھے یوٹیوب چینلز، پروگراموں میں، وہ غلطیاں کیا آج درست ہو گئی ہیں جو واپس لے رہے ہیں؟ کیوں عمران؟ جناب کیا کہنا تھا؟ درخواست واپس دے دیجئے۔ عمران ہم مقدمہ نہیں لڑنا چاہتے، اب جو چاہے کر دیں، اپنا مقدمے فیصلے پہ عمل کر دیں۔ جی عمران۔ جی بالکل، آج تقریباً یہ 1.5 گھنٹہ طویل سماعت ہوئی ہے جامی صاحب، اور اس میں زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی بولے ہیں، کیونکہ جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل نے روسٹرم پر آ کر یہ استدعا کی کہ وہ وزارت دفاع کی نمائندگی کر رہے ہیں، وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آئی بی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور تینوں فریق اپنی اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پیمرا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہی کہا گیا، تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ پہلے تو آپ نے ایک دم سے تمام نے لبیک کیا اور اپیلیں دائر کر دیں، اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ سارے ہی ایک دم سے اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آرکسٹریٹ کیا ہو کہ پہلے ایک دم سے آپ نے اپیلیں دائر کی اور اب آپ واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے واپس تو نہیں کی نا، انہوں نے کہا آپ کے تحریری طور پر جمع کروائیں، انہوں نے درخواست منظور نہیں کی اور 1 مہینے کا وقت دے دیا کہ جواب جمع کرائیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا، اس کی رپورٹ بھی پیش کریں۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ جن تجاوز کیا ہے جن اداروں نے، وہ اپنے افسروں کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ دیکھیے، آج یہ بھی دلچسپ بات بتاؤں، یحییٰ خان کو سپریم کورٹ نے یوزرپر قرار دیا، اچھا ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ جنرل ضیاء الحق کے جب جنیجو کیس میں ان کے خلاف فیصلہ دیا، ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ پرویز مشرف جو تھے، ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا، ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ جی یہ پہلا مقدمہ ہے کہ جن میں حاضر سروس افسروں کے خلاف ریمارکس دیے گئے نہیں اور کاروائی جو ہے، کاروائی کی ہدایت کی گئی۔ جی جی، انہوں نے کہا اس فیصلے مجھے یاد ہے لکھا گیا انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے کہا اگر یہ کاروائی ہو جاتی تو اس کے بعد جو ایسے واقعات پیش آئے ہیں وہ نہ ہوتے۔ ہاں جی، احتجاج کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا عمران، کیا کہا پھر جناب چیف جسٹس نے؟ تحریری طور پر جب لکھ کے آپ جمع کروائیں تو کہا گیا کہ مٹی پاؤ، نظر انداز کر لو، یہ بھی اگر آپ نے کہا تو لکھ کر دیں۔
बिल्कुल ये दौरान समाअत बड़ा दिलचस्प मरहला था जब इलेक्शन कमीशन के वकील थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए, तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये उनको कहा कि कमर अफजल साहब, आप इस वक्त एक इदारे की रिप्रेजेंटेशन में हैं, आपको ये देखना होगा कि इदारे जो है वो कायम रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। आप ये बात नहीं कर सकते कि तब इलेक्शन कमीशन में कुछ और लोग बैठे थे, अब और हैं। आपने हमें ये बताना है कि अगर एक फ़ैसला आया था, उस पर अमल दरामद क्या हुआ और आप अपील में आए, तो आपका बुनियादी मुद्दा क्या था। आपने पॉइंट ऑफ लॉ से हमें सेटिस्फाइड करना है। आप हमें ये बता के सिर्फ मिट्टी पाव नहीं कर सकते कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन में कुछ और लोग बैठे हुए थे और अब कुछ और हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। जनाब मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एक अरसे से अदालती कार्रवाइयों पर गहरी नज़र रखते हैं, उन्हें रिपोर्ट भी करते हैं और अनसेंसर्ड रिपोर्ट करते हैं। यानी वो सहाफ़ी हैं, सिर्फ सहाफ़ी, तज्जियाकार, ओहो, दानश्वर, मुजाहिद हैं, प्रोग्राम एंकर, वो हमारे लीडर हैं, सहाफ़ी रहनुमा, और कुछ बताइए। हम उनको फॉलो करते हैं, उनका हौसला पकड़ते हैं, इसीलिए उनको फिर मैंने आज ज़हमत दी। बहादुर आदमी है। मती साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि किसी से मुती नहीं होते, किसी से। मोती साहब मेरा एक सादा सवाल आपसे ये कि मुझे समझ आ रही है आज के केस के बाद कि ये नजर सानी की अपीलें खारिज हूँ या ना हूँ, वो धरना केस का जो फैसला है वो अलबत्ता जिंदा हो गया। क्या ये तासुर दुरुस्त है? सर, वो धरना केस का फैसला तो 4 साल से जिंदा है, लेकिन उसको जिंदा दरगोर किया जा रहा है। आज जो है नजर सानी की जो दरखास्तें वापस ले देने की बातें हो रही हैं जी, तो ये दरख्वास्तें अगर आज भी वापस नहीं होती, तब भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पे अमल दरामद करना तो लाजम था। अब जिन इदारों ने, जिन लोगों ने उस पे अमल दरामद नहीं किया, तो मेरे ख्याल में उनको ये वजाहत जरूर देनी होगी सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को, कि उनकी आला तरीन अदालत के इस फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ। अच्छा, वो फैसले पे अमल होना क्या था? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि पहले जो दरख्वास्तें इकट्ठी अगर दायर की गई थी और आप कहते हैं कि वो और दौर था और हुकूमत थी, उस वक्त इलेक्शन कमीशन में कोई और था, तो अब अगर आप सही लोग आ गए तो फिर आप सच बोलें, फिर आप बताएं कि वो दरख्वास्तें किसके कहने पे दायर की गई थी और अभी तक अगर अमल नहीं हुआ तो कौन लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बल्कि ये इस मौके पर ये कहा कि सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं, ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने अपने आप को भी सुप्रीम कोर्ट को भी एहतसाब के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि आप हमसे सवाल करें, हमसे पूछे कि ये केस क्यों नहीं लगा और ये 4 साल तक ये नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत क्यों नहीं हुई, हमसे भी पूछे। और जाहिर बात है वो ये कहना चाह रहे थे कि जो मेरे से पहले के चीफ जस्टिस थे उन्होंने जानबूझ के इन केसों को नहीं लगाया, जिनमें आसिफ सईद खोसा है, गुलजार है और जस्टिस उमर ता बंदयाल है। तो वो चाह रहे हैं कि ये सवाल उठाए जाएं और वो दुरुस्त तौर पे ये सवाल खुद चीफ जस्टिस भी उठा रहे हैं, क्योंकि अगर ये इन सवालों के जवाब आज नहीं मिलेंगे तो फिर आइंदा भी यही कुछ होता रहेगा और हर इदारा मैनिपुलेट होता रहेगा। अगर सवालों के जवाब ढूंढे जाएं तो आप किस किस की गोशमाली होते हुए देख रहे हैं? ये तो बड़ा मुश्किल और आसान सवाल है। इंतहाई मुश्किल लेकिन उतना ही आसान। पिछले 75 साल से जिसने गोशमाली करने की कोशिश की है, उल्टा उसकी गोशमाली हो गई। ठीक। और हमारे जो सिविलियन हुकूमतें रही हैं उनकी जो कंबल परेड की जाती रही है वो भी तारीख का एक हिस्सा है। चाहे वो कंबल परेड 2014 के धरने के जरिए की गई, चाहे वो कंबल परेड 12 मई के वाक़े के जरिए की गई, तो इस कंबल परेड के पीछे वही लोग हैं ना जो कंबलों का बेहतरीन इस्तेमाल करते रहे हैं। चले अब क्या तब्दीली आ गई है? कोई तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल में तब्दीली जो है किसी चीफ जस्टिस के बदलने से नहीं आ सकती। तब्दीली जो है वो अवाम के लोगों की सोच में आएगी और चीफ जस्टिस भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अदालती फैसलों के जरिए, अदालती कार्रवाई के जरिए उसको बराह रास्त दिखा के अवाम की सोच में तब्दीली लाने की कोशिश करें। और इन चीजों को अगर ना रोका गया तो आज नहीं तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के बाद भी ये तब्दीली आ सकती है और तब्दीली एक दिन में नहीं आ सकती। मती साहब, ये जब हमें उम्मीद रखनी चाहिए जी कि इनके हाथों ही ये तब्दीली का चिराग जल जाएगा। अल्लाह करे। मती साहब, ये अगर ये लाइव ट्रांसमिशन होते रहे पब्लिक के इंटरेस्ट के केसेस में। अच्छा, ये भी याद आ गया मुझे, ये लाइव इसकी टेलीकास्ट की जाएगी इस केस की समाअत? हो सकता है।
देखिए बिल्कुल आज ये सवाल भी उठा था और उन्होंने कहा था कि कमेटी जो बनी हुई है वो इसका जायजा ले रही है, क्योंकि फुल कोर्ट का एक पायलट प्रोजेक्ट था और उसकी तजावीज की रोशनी में फिर हतमी फैसला किया जाएगा। अगर वो लाइव ट्रांसमिशन हो तो फिर पता लग जाए ना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा था, कौन कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा था। लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं क्या किस किस की मोहर है। अच्छा, सारे महजर एक छोटा सा सवाल आखिरी, क्योंकि ब्रेक आ गई। साहब ये लाइव ट्रांसमिशन जो है हमारी कौम 75 साल से देख रही है, ये और बात है कि वो टीवी चैनल की बजाय अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख रही है। अच्छा, छोटा सवाल है मेरे पास, ब्रेक आ गई है। मती साहब आपका वक्त भी कीमती है, ये फरमाए, ये जब जस्टिस सतर मुनल्ला और दीगर भी कह रहे थे कि क्या तमाम इदारों ने ये तय कर लिया कि जो फैसले में लिखा वो ठीक है, अगर वो ठीक है उसी बुनियाद पे फिर ये नजरसानी वापस ली जा रही है, तो अमल दरामद कैसे होगा उस फैसले पर? फिर तो फैसले पे अमल दरामद होगा, फैसला हतमी हो जाएगा। सर वो तो ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि अगर दरख्वास्तें हम वापस ले रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आप पहले गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, या फिर अब आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो दरख्वास्तें अगर वापस ले रहे हैं तो पहले आप लिख के हमें बताएं अगली तारीख तक, 27 सितंबर तक तहरीरी तौर पे कि किन हालात में दरख्वास्तें दायर की गई थी, पूरा सच बोलें, और अब किन हालात में वापस की जा रही हैं। क्या पहले कहीं ये ऑर्केस्ट्रा तो नहीं था कि एक शख्स एक डंडे के इशारे के जरिए पूरा ऑर्केस्ट्रा चला रहा था, तमाम इदारों को एक साथ काम करने पे मजबूर कर रहा था, और अब भी कोई ऑर्केस्ट्रा तो नहीं है। तो चीफ जस्टिस बजा तौर पे ये जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि और ये मैंने सुना आप जैसे दोस्तों से कि अबसार आलम साहब जिस वक्त पैमरा के चेयरमैन थे, उन्होंने भी कोशिश की रोस्टम पर आने की, उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो उन हालात का जिक्र कर सकें जिन हालात के ताबे जो भी हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने चीफ अबसार आलम के ने मेरी नजर से तो नहीं ऐसा कोई मंजर गुजरा, मगर ये है कि यकीनी तौर पर उनका नाम लिए बगैर चीफ जस्टिस ने कहा है कि टेलीविजन पे जितनी भी बातें की जा रही हैं एक इदारे के हवाले से, तो वो हल्फिया बयान के तौर पे या दरख्वास्त के तौर पे कोर्ट के सामने लाई जाए। तो वो एक मेरे ख्याल में मुनासिब तजवीज़ है और जिस पे अबसार आलम गौर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इनामतुल्लाह जान साहब। नवाज़ नसरुल्लाह खान साहब एक शेर पढ़ा करते थे इस मौके पर, ये बिगाड़ कर बनाए जा, बिगाड़ कर बनाया जा, उभार कर मिटाए जा। सुभान अल्लाह, क्या इसमें नस्तालिकी टच है आर्ट का। मैं तेरा चराग हूँ, जलाए जा, बुझाए जा।